وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں تقریر نہیں کرنا ہے چونکہ آپ لوگوں نے حضرت علامہ سید عامر مسعودی صاحب کا بڑا اچھا خطاب آپ لوگوں نے سماعت کیا ہے، اور وہی سے بھی جب سمجھیے ایک دم ترتیب الٹی رہی ہے، جب مصلح قوم و ملت حضرت علامہ صفحت اللہ کے صاحب کو چاہیے تو اس وقت مجھ کو ایک دم ترتیب کر دی ہے، چونکہ بزرگوں کو آخر میں لانا چاہیے اور ہم لوگ تبھی جوانوں میں ہم لوگ کا شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مدرسہ دارالعلوم شہیدیہ، اس میں ہمدرد قوم و ملت جناب ظفر عالم صاحب اور حضرت مولانا غلام مصطفیٰ جامی اور حضرت حافظ توصیف صاحب ان لوگوں کی محنت رہی ہے، اور باقی اس کے مدرسے کے اراکین لوگوں نے بھی محنت کیا ہے، جس کا صلہ اللہ نے آج ان کو فاض اکرام رکھ اور باقی جو نوجوان ہیں سریاں ہیں ان لوگوں نے بڑی محنت کی، تو اللہ نے اس کا صلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ لوگ حافظ قرآن اور قاری ہوئے ہیں لوگ۔ تو بہرحال آپ لوگ تعاون کرتے رہیں گے تو یہ مدرسہ دن دورہ رات چودہ ترقی کرے گا۔ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، تقریر نہیں کرنا، بس میں ایک بات تھوڑی دیر کے میں بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے آپ نکلے اور جب مکے کے قریب پہنچنے والے ہوئے تو آپ مقام دجنان پہ رک گئے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور یہاں کیا بات ہے، کوئی وجہ ہے کہ جو روک رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ایک نسبت یہاں سے ہے جس کی وجہ سے میں رک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں جب میں حالت کفر میں تھا تو میرے باپ خطاب کے 5 تھے اور ان کو میں چلاتا، میرے باپ خطاب کہتے کہ ان کو لائن سے کھڑا کرتا، تو میں کھڑا کرتا تھا، ایک کو کھڑا کرتا دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا تیسرا بھاگ جاتا، اور کہیں کہ میرے باپ خطاب کہیں سے دیکھا کرتے مجھ کو، اور جب میں نہیں سب کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کر پاتا تو میرے باپ آتے اور مجھے تماچا مارتا، کہتے کہ 5 جھوٹ تم سے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مگر جب سے میں نے رسول اللہ کا دامن کرم کو میں نے تھاما ہے، جب سے میں ایمان لے آیا ہوں تو آج مدینے سے لے کر ایران تک، مدینے سے لے کر شام تک پوری حکومت ایمان کا ایمان کا اس نور محمدی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے میرے دل کو طاقت و قوت عطا کی۔ ایمان بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف مسلمان ہیں، اور ہم لوگ میں کتنے ایسے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ ہم کسی نبی کی امت میں۔ آج میں بتاؤں کہ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ کوئی فخر کی بات نہیں، میں پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، میں نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے نبی بس کہیں ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ایسے مسلمان بنو کہ جو ہے غیر دیکھے، کفار و مشرکین دیکھے کہ تم سے قائب ہو جائے۔ آج تو یہ حال ہے کہ ہم لوگ ڈر کرتے ہیں۔ میں بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولادوں کو 3 خصلت۔ آج ہم لوگ کا کیا ہے، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو جب تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو آپا کہنا سکھاتے ہیں، کھانے پینے کی چیز کا نام گناتے ہیں، اس کے بعد اور بہت بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، ABCD پڑھنے لگتے ہیں، پڑھائیے، کیونکہ زمانے میں بنیادی تعلیم میں ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بھی کریے، تاکہ دن میں اگر وہ ڈاکٹری کرتا ہے، اگر وہ انجینئر ہے تو رات میں مصلے میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تب جا کر اس کی کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں بچپن میں سکھاؤ۔ پہلی کیا؟ حب و نبی جو اپنے نبی کی محبت۔ نبی کی محبت کیسے؟ صرف ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیا، بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کی شان اور عظمت کیا ہے، یہ بتاؤ۔ جب محبت کسی سے ہوتی ہے ایسا ہی نہیں ہوتی، جب اس کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے تب محبت۔
जिस किसी से आप मोहब्बत करते होंगे तो उसकी अजमत, उसकी शान, उसकी बुजुर्गी आपके दिल में बहुत होगी, तो आप सोचते होंगे कि ये बहुत बड़ा है, इस वजह से उनकी ताज़ीम करते हैं। तो सिर्फ आप कलमा पढ़ाइए, ये कलमा पढ़ाइए, मगर उसके साथ ये बताइए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है कौन। ये जो शान हम लोग है ना, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमारे बच्चे लोग जिद करते हैं कि अब्बा बाहर जा रहे हैं तो लेकर के आइए। आप लोग भी जानते होंगे, तो आप हाफिज तनवीर साहब के बच्चे हैं, ये जानते होंगे, ये तो बहुत घूमते हैं पूरे, मेरे ख्याल से पूरे बिहार का दौरा करते हैं माशाअल्लाह। और तो जब ये लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, तो जब कुछ लाएं तो अपने बच्चों को तो ये बताएं कि बेटा ये जो कुछ हम लेकर के आए हैं और ये जो शान और अजमत हम लोगों को है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की देन है, उनकी शान और अजमत की देन है कि आज हम उनके मकाम में ये चीजें बताएं। और दूसरी क्या, वो अहले बैत ही, और अपने नबी की अहले बैत की मोहब्बत से। अहले बैत कौन है? अहले बैत जानते सब, आप जान जाते हैं, सैयद साहब हैं, अली ये जानिए कि अहले बैत कौन है। मैं बताऊं, पूरी दुनिया में अगर नस्ल चलती है तो बाप से चलती है, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि हाजा इमरान, ये दोनों मेरे बेटे हैं। और पूरी दुनिया में सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की नस्ल पाक से जो है सैयदा की खानदान जो चली है, ये खातून जन्नत से चली है। और हसनैन करीमैन के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि हाजा इमरान, ये दोनों मेरे बेटे हैं, यानी इनसे मोहब्बत करो। आप जानते हैं हम लोग करते क्या है कि जो है मुहर्रम का महीना आता है, या मान लीजिए अभी महफिल चल रही थी, नारा लगा रहे थे कि इमाम हुसैन के नाम पे नारा लगा रहे थे, गौस पाक को। देखिए मैं बताऊं, नारा लगाएंगे अच्छी बात है, ये सुन्नियों की पहचान है, मगर सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान को बदल। हम लोग कहते हैं कि आला हजरत के नाम, आला हजरत के आप मकाम मर्तबे को पहचानिए, आला हजरत का इश्क आप पहचानिए। आला हजरत क़ादिर बरेलवी जैसी शख्सियत कि अल्लाह के रसूल से इतना इश्क था कि जब जहाज गर्क होने लगा तो वालिदा परेशान है, माँ परेशान है, हुज्जाजे किराम परेशान है, अहमद रजा बड़े सुकून इत्मीनान से है। माँ कहती है कि जो है बेटा अहमद रजा बड़े सुकून से बैठो, जहाज गर्क होने वाला है, तुमको फिक्र नहीं है। आप फरमाते हैं, देखिए ईमान की पुख्तगी इसको कहते हैं, ये ईमान की पुख्तगी है। आप कहते हैं कि अम्मी जान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम पढ़ लिया, जहाज गर्क नहीं हो सकता। ये अम्मी जान अहमद रजा ने इस दुआ को पढ़ा है, लिहाजा जहाज गर्क नहीं हो सकता। सिर्फ नारा मत लगाइए। जो उलमा बैठे हो सकता है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप लोग इस्लाह करवाइएगा कि नारे वाले सुन्नी सिर्फ मत बनिए, बल्कि अमल करके दिखाइए कि जो उन मजहबों को कि तुमसे ज्यादा हमारा ईमान, हमको ये साबित करना है। देखिए अब मैं बताऊं एक चीज कि हम लोग मुरीद हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं, मैं एक जगह जलसे में गया था, गोपीगंज जिले में हबीबिया रिजविया के जलसे में गया था, हजरत अल्लामा शेख रहमतुल्लाह साहब मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ एक पीर साहब आते हैं, अब वो कहते हैं कि जो है बस तुम हमसे मुरीद हो जाओ, उसके बाद नमाज रोजा कुछ नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। तो जाने हजरत शेख रहमतुल्लाह साहब ने मुझसे कहा कि कहें कि हजरत अच्छे हाफिज उसके चक्कर में फंस गए, तो लिहाजा आप देखिए पीर को बहुत सोच समझ कर करिए। ऐसा नहीं कि मैं आ गया, लोगों ने मेरी तारीफ कर दिया, धड़ से मेरा दामन पकड़ लिया, मैं इस चीज का टाइम नहीं है। पहले देख लिया कि किसी के कहने पे एकदम आप जो है बस आंख नहीं बंद कर लेना चाहिए। और मैं एक चीज और बताऊं, जब पीर को पकड़ लीजिए तो फिर उसकी आयत को मत तलाश कीजिए। जब पीर को पकड़ लिया है तो उसको आयत को मत तलाश कीजिए, बल्कि ये सोचिए अगर ये पीर कामिल नहीं है, इसका कोई ना कोई सिलसिले का ऐसा बुजुर्ग होगा जो मुझे मकसद तक पहुंचे। सुभान अल्लाह बेशक। इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए सेहरा में जो अपनी औलाद को कुर्बान किया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि नारा लगाने के लिए, उम्मत मुहम्मदिया को बचाने के लिए, दीन मुहम्मदी को बचाने के लिए अपने खानदान को कुर्बान किया था। तो सिर्फ उस चीज को आप नारों में मत दीजिए, इमाम हुसैन ने जो जहन दिया था और जो बताया था उस पर अमल कीजिएगा तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। और तीसरी चीज क्या है, वो तिलावत कुरान और कुरान की। आज हम लोग तो कुरान पढ़ते ही नहीं। मेरे ख्याल से हम लोगों को लगता है कि एक मतलब शादी में जो कुरान शरीफ मिल जाता है उसके बाद रखा रहता है, शायद मरने के वक्त ही पढ़ा जाता है, उस तफसील नहीं होती। कुरान पढ़िए ताकि आपके दिल जो है मुनव्वर हो जाए। इनको पढ़िएगा ना तो आपका दिल मुनव्वर होगा, वरना ऐसे खाली आप
दुनिया कमाई, मैं इस चीज को नहीं कहता कि दुनिया में, दुनिया जरूरी है, बाल बच्चों की परवरिश वो आपका फर्ज है, आप नहीं करेंगे कौन करेगा, मगर उसके साथ साथ आखिरत की तैयारी भी कीजिए। आखिरत में जो कब्र, सबसे पहली जो मंजिल है कब्र है, वहां की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर वहां कामयाब होगे तो आगे कामयाबी का जरिया है। अगर यहाँ फंस जाएंगे तो फिर मैं बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं ठीक है पीर बचाएगा, यकीनन बचाएगा, मगर जब पीर के बताए हुए तरीके पे चलिए तब तो बचाएगा। अब पीर के बचाए हुए तरीके पे न चलिए और कहिए कि पीर साहब से मुरीद हो गए हैं तो हो गए, लिहाजा ऐसी चीजों से बचिए। और कुछ मेरे मुरीदीन ज्यादा तो नहीं आए, मुझको मालूम है, मगर आप लोग नमाज की पाबंदी, नमाज पढ़िए। और मैं एक चीज मैं बताऊं कि देखिए हालात बड़े खराब है, अभी बिहार की हालत थोड़ा बेहतर है, हमारी यूपी की हालत तो ज्यादा खराब है। तो देखिए मैं कारोबार के आप जा रहे हैं कि मस्जिदें रास्ते में मिले तो आप रुक करके नमाज पढ़ें, अगर वक्त नहीं मिलता है तो आकर के घर पे फंसा नमाज पढ़ा। क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, अगर आप लोग नमाज पढ़ते रहेंगे तो ये आदत बड़ी रहेगी और फिर उसमें कामयाबी होगी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन पढ़ा, दो दिन छोड़ दिया तो फिर उसके क्या होगा, फिर जो है धीरे धीरे अच्छा कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, और जिंदगी कोई जानता नहीं है कि कब आंख बंद हो जाएगी, ये कोई जानता नहीं है। लिहाजा आप आखिरत की तैयारी कीजिए, इसी में कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे के दिन दुगना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। और जो ये जनाब ज़फ़र आलम साहब ने और इन यहाँ का साथीज़ा ने जो इस मदरसे को जो है कामयाबी की तरफ ले गया, मैं तो जानता भी नहीं था, मैं करीबन 20-22 साल से आता हूँ, मैं पहली मरतबा सुना कि यहाँ पे मदरसा है। हकीकत बता रहा हूँ, मैं जो मुझको मालूम ही नहीं था, मैं समझता था कोई मतलब हो, मगर जो अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि दारुल उलूम की शख्स यहाँ पर है। तो ये हज़रत अल्लामा गुलाम जामी साहब और गुलाम मुस्तफ़ा जामी और हाफिज़ तौसीफ साहब और यहाँ के जितने राकीन लोगों की मेहनत है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी और जबला तरक्की अता फरमाए और हम सबको इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि।